انسانی دماغ کے اندر یہ صلاحیت یا صلاحیتیں ہیں، اتنی فاسٹ کیلکولیشن کر لیتا ہے۔ بتانے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو یہ شوق ہو یا آپ جاننا چاہتے ہوں یا سیکھنا چاہتے ہوں، انسان کے دماغ کو یہ صلاحیتیں دی جا سکتی ہیں یا ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، سب سے ضروری بات یہ سمجھیے کہ یہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کوئی بندہ کوئی بات کرنے لگا ہے تو شاید اس کا جملہ پہلے ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہو، یا بعض دفعہ یہ محسوس ہوا ہوگا کہ کوئی مجھے یاد کر رہا ہے اور پتہ کرنے میں معلوم ہوا کہ وہ واقعی ہی یاد کر رہا ہے، یا اس طرح کے بہت سارے اور بھی واقعات۔ اور آپ کی زندگی میں شاید یہ واقعات بھی ہوئے ہوں کہ آپ کسی پیر صاحب کو جانتے ہوں یا کسی عامل صاحب کو، جن کے متعلق مشہور یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو دیکھتے ہی ان کے آگے پیچھے یعنی کہ ماضی، حال، مستقبل کے حالات بتا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی وجہ شہرت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف کے حالات کو جانتے ہیں بلکہ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام موضوعات جب روحانیت کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں تو نارملی جو ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں وہ القاء، الہام اور کشف سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پیراسائیکالوجی کی فارم میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی اس طرح کی کچھ قوتوں کی یا صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں، اور اس کو پری کوگنیشن، کلیئروائنس اور ٹیلی پیتھی وغیرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ہی کوئی سپر نیچرل طاقتیں ہیں یا کسی انسان کے اندر اس کا برین اس طرح کا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے نیچرلی بائی برتھ یا کسی ٹریننگ کے ذریعے سے کہ اس کو واقعی کشف، الہام یا القاء ہو، اور یا اس کے اندر ٹیلی پیتھی اور کلیئروائنس جیسی قوتیں بیدار ہو جائیں۔ آج کی ویڈیو اسی چیز کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ القاء، الہام اور کشف کیا ہے۔ القاء نارملی ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ اچانک کسی چیز کے متعلق ہمارے دل و دماغ میں یعنی کہ سینسز کے اندر اس کی کوئی بنیادی معلومات ہمارے دل میں آ جاتی ہیں۔ الہام ایک ایسی چیز کو ہے کہ جو اس سے تھوڑی سی اوپر درجے کی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا یا خدا کے بندوں کی طرف سے یعنی کہ اولیاء اللہ یا بزرگوں کی طرف سے آپ کو الہام ہوتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کی معلومات یا اس کی جو فطرت ہے اس کے متعلق آپ کو معلومات دے دی جاتی ہے۔ تیسری چیز کشف ہے جو ان دونوں سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، جس کے اندر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو پوری کی پوری چیز باقاعدہ کھل کے سامنے آپ کی آ جاتی ہے۔ آپ اپنی کھلی یا بند آنکھوں سے اپنے ذہن یا دل کے اندر اس چیز کی پوری وضاحت پا لیتے ہیں، اور اس کی غرض و غایت وہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کا بنیاد کیا ہے، یہ آگے جا کے کیا کرے گا، یعنی کہ ایک ڈیٹیلڈ فارم کے اندر آپ کو کشف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کی جب بھی بات کی جاتی ہے یعنی کہ الہام، القاء اور کشف کی، تو نارملی یہ کسی روحانی بزرگ کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں، یا جس بندے کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں یا وہ یہ پریکٹس کر سکتا ہو تو اس کو ایک روحانی شخصیت مانا جاتا ہے۔ میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طریقے سے ہے کہ میں روحانیت کو مانتا تو ہوں اور القاء، الہام اور کشف کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ہی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ میری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جو نیچرلی یہ کشف والے لوگ تھے، چاہے وہ کشف القبور والے لوگ تھے، چاہے وہ دوسری عام زندگی کی کشف کے متعلق تھے، لیکن میرا ایسے لوگوں سے ملنے کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ کچھ اتنا مضبوط ایکسپیرینس ہے کہ وہ ڈینائیبل نہیں ہے۔ لیکن میری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق میں نے یہ دیکھا، اور خاص طور پہ ارتکاز یعنی کہ کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز کے ذریعے سے انسان کے دماغ کو یہ صلاحیتیں دی جا سکتی ہیں یا ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ذہن پڑھ سکتا ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر اپنے خیالات ڈال سکتا ہے، ہونے والے واقعات کے متعلق کیلکولیشن کر سکتا ہے، یا پری کوگنیشن کے کچھ ہونے والا ہے اس کے متعلق بھی وہ جان سکتا ہے۔ میں اس ایکٹیویٹی کو ہمیشہ کسی روحانیت کے کھاتے میں نہیں ڈالتا،
تھا, बल्कि मेरी समझ के मुताबिक और जितना न्यूरो साइंस को मैंने पढ़ा या ब्रेन की एक्टिविटीज को पढ़ा, मैं ये आज समझने पे मजबूर हूँ कि ये तमाम की तमाम चीजें रूहानियत के चैप्टर को अगर अलहदा भी रख दिया जाए तो इंसानी दिमाग के अंदर ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि जिसकी वजह से वो इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर लेता है कि किसी बात के होने से पहले, किसी वाक़े के होने से पहले उसको मालूमात मिल सकती हैं और एक ख़ास लेवल पे जाके तजर्बा इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका होता है कि किसी बंदे को देख लेने से ही, यानी कि एक नज़र पहली दफ़ा पढ़ने से ही आप उसकी पर्सनैलिटी को जांच सकते हैं. इससे पहले कि हम प्योर न्यूरोसाइंस या ब्रेन के उन हवालों के ऊपर जाएं कि जहां पे ये पता चले कि ब्रेन के कौन से हिस्से या ब्रेन की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को इस फास्ट एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग का इस काबिल करते हैं कि ये तमाम चीज़ें उसके लिए पॉसिबल हो जाती हैं. मैं क्लासिकल साइकोलॉजी के अंदर कार्ल जुंग की मिसाल दूंगा, जो 20वीं सदी के आगाज में तकरीबन फ्राइड के टाइम का बंदा है और ये मशहूर है अपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्कटाइप की वजह से. जुंग का मानना ये था कि तमाम के तमाम इंसान अनकॉन्शियस लेवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि अनकॉन्शियस लेवल पे कम्युनिकेशन होती है. और आर्कटाइप से ये मुराद थी कि ये वो ख्यालात या वो नजरियात, ज्यादा बेहतर है कहना, वो हैं कि जो हर खित्ते अर्ज में और हर इलाके में और हर कल्चर में कॉमन है. मिसाल के तौर पे, हम लंबी बात नहीं करते, जैसे हीरो का कंसेप्ट हर जगह मौजूद है, विलन का कंसेप्ट हर जगह मौजूद है, माँ से मोहब्बत और माँ से एक खास लगाव हर जगह पे मौजूद. अगर हम कार्ल जुंग के आर्कटाइप के जरिए से सोचें तो अगर कलेक्टिव अनकॉन्शियस की रॉ और आर्कटाइप जो एक मुश्तरका चीज है और ये हर इंसान के अंदर अगर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि इंसान अपने दूसरे लोगों से भी उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि टेलीपैथी. बल्कि इसके अलावा वो बहुत दूर दराज इलाके में बैठे हुए किसी बंदे के हालात या हुलिया या उसकी उस वक्त की हुए कामों के मुतालिक भी जान सकता है, क्योंकि आर्कटाइप की वजह से और उसकी जो कॉमन ग्राउंड्स हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हर इंसान की, वो हर जगह पे है. इसी बात को किसी एक और तरीके से सपोर्ट करता हूं. एक साहब हैं डैनियल कहनीमैन, अभी उनका पिछले साल ही इंतकाल हुआ है. 2002 में उनको इकोनॉमिक्स के ऊपर एक नोबेल प्राइज मिला, गो कि वो एक साइकोलॉजिस्ट थे. उनकी एक बहुत मशहूर ज़माना किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. उसके अंदर वो इंट्यूशन पे बड़े मजेदार तरीके से बात करते हैं. इंट्यूशन यानी कि कशफ के ऊपर वो ये बात करते हैं कि इंसानी थॉट दो तरीके से काम करती है, एक थॉट पैटर्न 1, एक थॉट पैटर्न 2. थॉट पैटर्न 1 के अंदर हम किसी भी चीज को देखते हुए अपने फौरी तौर पे अपनी राय बना देते हैं, यस या नो कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं. थॉट पैटर्न 2 के अंदर हमारा दिमाग एनालाइज करता है, उसका आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करता है, नजरिए को, और उसके मुताबिक फैसला करता है. डैनियल कहनीमैन की अगर बात को समझा जाए तो शायद कशफ की जो साइकोलॉजिकल वजह है वो हमें बड़े आसानी से समझ आ सकती है. स्टेप 1 के मुताबिक जिसके अंदर हम फौरी तौर पे कोई काम करते हैं, ये एक झमाका सा होता है और हमारे जहन में कोई बात आ जाती है. बेसिकली ये हमारी जो एक नेचुरल मेमोरी है हमारे अंदर, जो हमारे हर एक्ट को और हर काम को और हर बात को अपने अंदर रिकॉर्ड कर रही होती है. होता कुछ इस तरीके से है कि इस रिकॉर्ड रूम के अंदर क्योंकि हर तरह की थॉट और हर तरह की चीज मौजूद होती है, तो इस वजह से बड़ी तेजी से अगर कोई वाकया हो तो वो पास्ट एक्सपीरियंस के तहत उससे जोड़कर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको प्रॉपरली लंबे चौड़े एनालिसिस के अंदर नहीं जाना पड़ता. और इसको वो एसोसिएटिव साइकोलॉजी भी कहता है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ वन पैटर्न विद अनदर पैटर्न या एसोसिएशन ऑफ वन इंसिडेंट विद अनदर इंसिडेंट. नंबर 2 के अंदर हम फौरन कोई फैसला नहीं करते, बल्कि हम एनालाइज करते हैं, आराम स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, बिल्कुल जिस तरह मैथमेटिक्स के किसी फॉर्मूले में हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं. अब आ जाइए इस बात को कि ये जो सारा का सारा काम है, जैसे कहनीमैन का हमने ये देखा कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है या पास्ट इंसिडेंट के अंदर जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसकी वजह से रेफरेंस के तहत हम चीजों को जान लेते हैं. इसी तरीके से आपको बताऊं कि जो इंसानी दिमाग के अंदर ये सलाहियत या सलाहियतें हैं
जिसके तहत वो मुख्तलिफ चीजों को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर लेता है, ज्यादा चीजों को समझ लेता है, आने वाले वाकयात के मुतालिक भी जान लेता है या किसी का दिमाग पढ़ लेता है। इसमें दिमाग का कोई एक हिस्सा काम नहीं कर रहा होता, बल्कि दिमाग के 6-7 हिस्से मिलकर इस एनालिसिस को बना रहे होते हैं, असेंबल कर रहे होते हैं और उसका रिजल्ट दे रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये तरीकाकार इतना फास्ट तरीके से होता है बाज लोगों के अंदर और इतना एफिशिएंट होता है कि उसको एक धमाके की तरह या सेकंड्स के भी कई हजार में हिस्से के अंदर वो पास्ट एक्सपीरियंस और इन दिमाग के 6-7 हिस्सों का डेवलपमेंट की वजह से आपके अंदर वो चीज फौरी तौर पे आ जाती है। तो यानी कि ये बात देखी जा सकती है और ये बात कही जा सकती है कि इल्हाम, अलका और कशफ रूहानियत में अगर किसी बुजुर्ग ने आपके अंदर नहीं जगा दी, या जिसको हम सूफी ज़बान में कहते हैं कि बुजुर्ग ने एक रग नहीं खोल दी, जिसकी वजह से आपको चीजों की माहियत और असलियत समझ आनी शुरू हो गई है। साइंस हमें यह बताती है कि ब्रेन के अंदर ऐसी कैपेसिटीज और ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं कि आप इन चीजों को खुद से भी हासिल कर सकते हैं। बाज लोग इन पावर्स के साथ, यानी कि फास्ट, एफिशिएंट, प्रीकॉग्निशन होना, दिमाग पढ़ लेना, क्लेयरवाइंस, होने वाले वाकयात के मुतालिक जान लेना, कहीं और बंदा या कोई वाकया हो रहा है उसको देख लेना, ये तमाम की तमाम चीजें नेचुरली ब्रेन के अंदर ताकत में हैं। लेकिन बाज लोगों को ये पैदाइशी मिलती हैं और बाज लोगों को अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। सबसे जरूरी बात ये समझिए कि ये ना होने की वजह ये है कि हम में से अक्सर लोगों का आजकल के जमाने के मुताबिक दिमाग जो सा है वो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से खुद ब खुद ख्यालात की बौछार में मसरूफ रहता है, जिसकी वजह से ये दिमाग की जो नेचुरल सलाहियत है कैलकुलेशन की वो दब जाती है। तो कोई भी इंसान अगर कंसंट्रेशन के जरिए से अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन और दूसरे ऐसे तमाम दिमागी मामलात जिसकी वजह से उसकी तवज्जो एक जगह मुर्तकज नहीं होती और ब्रेन के वो हिस्से जो इसको इंट्यूशनल पावर दिला सकते हैं वो काम नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से आपका ये सारा का सारा सिस्टम जो उनसे होता है वो डेवलप नहीं होता। बताने वाली बात ये है कि अगर आप में से किसी को ये शौक हो या आप जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो कि ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं, तो हाँ, हो सकती हैं। आप लोगों के दिमाग पढ़ सकते हैं, आप अपनी साथ दूसरे होने वाले वाकयात के मुतालिक जान सकते हैं। ये सारा कुछ करना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए ब्रेन की एक खास तरह की ट्रेनिंग चाहिए, कंसंट्रेशन की, ताकि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग पे काबू पाएं कि जो ख्यालात आपके दिमाग में आने हैं वो आपकी इजाजत से आए। ओवर थिंकिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अननेसेसरी थिंकिंग से आपकी जान छूट जाए। सेकंड लेवल पे जब आपका दिमाग के वो हिस्से सुकून में आते हैं और पे ख्यालात की बुछाड़ नहीं होती, तो दिमाग के वही पार्ट जो एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं वो इतने ज्यादा डेवलप किए जा सकते हैं कि आपको आने वाले वाकयात का भी पता चल सकता है। किसी चेहरे को या किसी बंदे की मुलाकात करते ही आप उसका पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है, ये चीजें बगैर तस्बीहात, वज़ाइफ, चिल्ला कशी और कोई अजीबो गरीब कोई और काम जो अननेचुरल से हैं या रूटीन के नहीं हैं, इसको कहिए बगैर ब्रेन की एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन के जरिए हासिल की जा सकती हैं। अगर आप भी इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी नए न्यूरो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगस्त के एंड के ऊपर मैं एक 1 डे की वर्कशॉप भी करा रहा हूं जिसमें ये तमाम की तमाम चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे।